Learn from the past, watch the present, and create the future. Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today's topic is really very important for all the literature student, and the topic is tenses. My dear students, the first question arises: what is tense? Time and sense are the two words that make the word tense. Tense tells us about time and sense in a sentence. My dear students, this is really very important topic because if you want to study, if you want to be thorough in other grammatical topics like direct indirect speech, active passive voice, or any other topic, tenses is the foundation of all other grammatical topics. So you must be thorough in this particular topic. If you are not thorough, then please focus and watch this video till the end. Today you will definitely learn the tenses. So my dear students, without wasting the time, let's get started with the topic. Here we go. The first question arises: how many main tenses are there? So my dear students, how many main tenses? Everybody knows there are three main tenses. Which are those three main tenses? The first, present tense. Second, past tense. Third, future tense. Before we go ahead, let's try to know the words of wisdom. You cannot change your past, neither you can predict your future. Only thing you can live is your present. So my dear students, let's go ahead. Now the next question arises: how many total tenses are there? So my dear students, you must be knowing the answer of this question. How many? You are absolutely right. There are total 12 tenses. Main tenses we have 3, total we have 12. 3 4s are 12. So first, present tense. Each tense has 4 subtenses. So present tense has the 4 subtenses. The first is simple present tense. Second, present continuous tense. Third, present perfect tense. Fourth, present perfect continuous tense. Second, we have past tense. In that, fifth one is simple past tense. Sixth, past continuous tense. Seventh, past perfect tense. Eighth, past perfect continuous tense. Third, we have future tense. In that, ninth, we have simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and last, future perfect continuous tense. Now my dear students, whenever I ask my students that you have 1 minute and learn all these 12 tenses, it's very simple. If you learn only these 4 tenses, automatically you learn the rest 8. How? Very simple. You just need to remember simple present tense, these 4 tenses, and what you need to do, just in place of present, you write the past. Simple present tense, here simple past tense. Then in place of present, write past continuous tense. Past perfect tense, past perfect continuous tense, and similarly with future. I hope you understood what am I trying to tell you. So these are the total 12 tenses. Now my dear students, in this video we are only going to cover the 4 tenses of present tense. The rest 8 tenses will cover in the different videos. So let's do it slowly. धीरे धीरे करते हैं. अगर आप पर्टिकुलर टेंस पर ही फोकस करोगे तो आप सीख जाओगे सारे के सारे टोटल 12 टेंसेस. तो चलिए शुरू करते हैं. So the first is simple present tense. So the first question arises: when do we use simple present tense? Simple present tense when we show the day to day routine life. जब भी हम अपने day to day routine life में जो भी होता है उसको दिखाने के लिए हम simple present tense का इस्तेमाल करते हैं. Whenever there is a fundamental fact things, जो fundamental fact चीज़ होती है उसको दिखाने के लिए simple present tense का इस्तेमाल होता है. Clear? So the formula of simple present tense is सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब 1, उसके पीछे एस या तो ईएस लगेगा, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट. सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट. नाउ सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन. नाउ व्हाट आर द सब्जेक्ट? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. छगन, मगन, जगन, द डूअर ऑफ एक्शन, जो जिसके द्वारा एक्शन हो रही है वो आएंगे सब्जेक्ट. फिर होगा वर्ब. याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब 1, वर्ब की पहली फॉर्म, फिर उसके पीछे लगेगा एस या तो ईएस, और लास्ट में ऑब्जेक्ट. चलिए देखते हैं सेंटेंसेस, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा. पहला सेंटेंस है शी प्लेज क्रिकेट. दूसरा सेंटेंस है ही गोज टू द मार्केट.
थर्ड, दे वेयर मास्क इन द बैंक. राजा सिंग्स अ सॉन्ग इन द स्कूल. बॉयज ट्राई टू मीट देयर टीचर्स. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने जैसी है वो है एस और ईएस का, ओके, ये फंडा याद रखना दोस्तों. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी सेंटेंस की शुरुआत थर्ड पर्सन सिंगुलर से होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं? ही, शी और इट. याद रखना, मैं रिपीट करता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एंड ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, whenever the sentence starts with third person singular, and third person singular means he, she, it, so the verb will be added with s or es. याद रखना, जब सेंटेंस की शुरुआत ही, शी, इट से होती है तो वर्ब के पीछे एस या तो es लगेगा. अब ये वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पीछे एस लगेगा या es लगेगा. अब यहां पर देखो, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी प्लेज क्रिकेट. ही, अब ये गो है तो उसके पीछे लगता है ईएस, ही गोज टू द मार्केट. अब यहां पर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो यहां पर लगेगा दे वेयर, इसके पीछे एस या ईएस नहीं लगेगा. राजा थर्ड पर्सन, ओके, अब यहां पर ही, अगर ही नहीं लिखना है और तो हम नाम भी लिख सकते हैं राजा. सो राजा सिंग्स, एस लगा, राजा सिंग्स अ सॉन्ग इन द स्कूल. बॉयज, अब ये प्लूरल है, बॉयज ट्राई टू मीट देयर टीचर्स. क्लियर? कमलेश सर टीचेस, टीच तो उसके पीछे लगेगा ईएस, कमलेश सर टीचेस टेंसेस टू दी स्टूडेंट्स. क्लियर? आई होप आपको समझ में आया है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो शैल वी गो ऑन द नेक्स्ट टेंस? हियर वी गो. द नेक्स्ट टेंस वी हैव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एम इज आर, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. Subject plus am is are plus verb 1 plus ing plus object. The next question arise, when do we use present continuous tense? Present continuous tense का इस्तेमाल कब होता है? Whenever the action is going on in the present, that is present continuous tense. जब भी कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रही हो वो दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होता है. अभी कोई एक्शन हो रही हो, अभी, तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं. एग्जाम्पल आपको और मदद करेंगे अच्छी तरह से समझने के लिए. तो पहला एग्जाम्पल हमने सेम लिया, शी इज प्लेइंग क्रिकेट. सेकेंड, आई एम गोइंग टू द स्कूल. रमेश एंड जगन आर प्लेइंग इन द रेन. वी आर स्टडिंग टेंसेस. चिल्ड्रन आर मेकिंग पेपर बोट्स इन क्लास. सो माई डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. रिमेंबर, सी सब्जेक्ट, एम इज आर, शी के साथ जाता है इज, देन वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लेइंग एंड ऑब्जेक्ट क्रिकेट. वेरी सिंपल. ओके, आई एम, वर्ब 1 प्लस आईएनजी गोइंग, देन टू द मार्केट इज ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आई होप आपको समझ में आया है. अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दोस्तों, जिनके पीछे जो वर्ब्स आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते. मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम लविंग माय मदर वेरी मच, यू कैन नॉट से लाइक दैट. आई लव माय मदर वेरी मच. आई एम नीडिंग यू, आई नीड यू. तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें जो वर्ब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है, जो आपको याद रहने चाहिए, आपको समझने चाहिए. सो आई होप यू अंडरस्टूड द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कब इस्तेमाल होता है? जब कोई एक्शन अभी हो रही है. ओके, प्रेजेंट में कोई एक्शन कंटिन्यूस हो रही है, उस चीज को दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल होता है. आई होप आपको समझ में आ गया. चलिए बढ़ते हैं आगे. लेट्स सी द थर्ड टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज subject plus has have plus verb 3 plus object. So here we have has and have. Remember, don't get confused. Next question, when do we use present perfect tense? Present perfect tense जब भी कोई action present में शुरू हुई है और present में ही खत्म हो गई है, उस चीज को दिखाने के लिए हम present perfect. अब has और have का इस्तेमाल आप जरा समझ लो. he, she और it के साथ हम इस्तेमाल करते हैं has. Okay, I, you,
वी एंड दे के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैव। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। सो ही शी इट के साथ हैज़, आई यू वी दे के साथ हैव। अगर कोई नाम आता है राजा जगन मगन तो हैज़। क्लियर एवरीवन? आई यू वी दे के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज़। हैज़ जो है वो सिंगुलर है, हैव जो है वो प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ जाता है, लेकिन आई यहाँ पर एक्सेप्शनल है, आई के साथ हमेशा हैव ही जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सेंटेंसेस आपको और मदद करेंगे अच्छी तरह से समझने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट एग्जांपल। शी हैज़ प्लेड क्रिकेट। यहां पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट हैज़ प्लेड क्रिकेट। लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। आई हैव विजिटेड माय विलेज इन समर वेकेशन। दे हैव डांस्ड इन द रेन, हैव डांस्ड। वी हैव स्टडीड डिफरेंट सेंटेंसेस इन ग्रामर क्लास, हैव स्टडीड। A student has won mask in the vegetable market. So I hope ये sentences आपको समझ में आए। आप देख सकते हो यहाँ पर subject has and verb 3 played, subject have, verb 3 visited, they have danced, we have studied, a student subject has, okay, won, where won, where were won. So, my dear students, these are the example of present perfect tense. Here we go. The fourth tense is present perfect continuous tense. The formula of this tense is subject plus has have plus been plus verb 1 plus ing plus object. Now, my dear students, the next question arise, when do we use present perfect continuous tense? इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई हो, जैसे कि एक आदमी है जिसका नाम है कि छगन भाई। क्या नाम है? छगन भाई। ये सुबह रोज 5 बजे उठते हैं, 6 बजे तैयार होकर ये अपने काम पर चले जाते हैं। 6 बजे ये काम पर चले जाते हैं, 7 बजे ये काम करना शुरू करते हैं 7 o'clock, और अभी बजे है दोपहर के 1। 7 बजे से लेकर 1 बजे तक यह भाई साहब काम करते रहते हैं। कहाँ पर? अपने फार्म में। समझना, एक आदमी है जिसका नाम है छगन भाई, जो 5 बजे उठते हैं, 5 से 6 के बीच में तैयार हो जाते हैं, 7 बजे तक ये अपने फार्म पर पहुंच जाते हैं, 6 बजे तक अपने फार्म पर पहुंच जाते हैं सॉरी, और 7 बजे से ये काम करना शुरू कर देते हैं और अभी बजे है दोपहर के 1। अगर कोई इंसान पास्ट में काम शुरू करता है और अभी तक वो काम चल रहा है, उस चीज को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब दोस्तों, आपको एक्चुअली टेंसेस पता है, आपको आते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है ये ग्रामर का, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ग्रामर के जो टेंसेस हैं इसका सही इस्तेमाल नहीं आता। दे डोंट नो हाउ टू यूज इट इनटू करेक्ट ओके टाइम पर कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो वही चीज़ आपको सीखनी है। जब कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई हो और अभी तक चल रही हो, उस चीज़ को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं इसी चीज़ में, इसी सिचुएशन पर। छगन भाई सब्जेक्ट हैज़ बीन वर्किंग इन द फार्म सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। अब बजे है दोपहर के 1। अगर अभी हमें बताना है कि भाई छगन भाई क्या कर रहे हैं। छगन भाई हैज़ बीन वर्किंग इन द फार्म सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। दोस्तों, यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है, यहाँ पर आप सिंस और फॉर भी ऐड कर सकते हो। अब सिंस किसके लिए इस्तेमाल होता है और फॉर किसके लिए इस्तेमाल होता है वो भी समझ लो। सिंस इस्तेमाल होता है फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम को दिखाने के लिए, जैसे सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट ईयर, सिंस 1945, सिंस 2010, जब आपको एग्जैक्ट टाइम बताना है तब। और फॉर इस्तेमाल होता है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको ड्यूरेशन बताना हो, फॉर 3 months, फॉर 2 hours, फॉर 4 years, फॉर 4 months, जब आपको ड्यूरेशन दिखाना हो तब फॉर का इस्तेमाल होता है। एक्चुअली ये पर्टिकुलर टेंस में ये सिंस और फॉर लगाते हैं। मैक्सिमम सेंटेंसेस में आप देखोगे सिंस और फॉर का इस्तेमाल आपको दिखेगा, तो वो चीज़ आपको समझनी है। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहला एग्जांपल, शी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये सिंपल सा सेंटेंस मैंने बनाया। पहला सेंटेंस मैंने कॉमन ही लिया है, आपने देखा होगा पिछले 3 टेंसेस में। तो पहला सेंटेंस है हमारा शी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा है आई हैव बीन वॉचिंग बास्केटबॉल गेम इन द टेलीविजन। यू हैव बीन सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग फॉर 3 hours। अब देखो यहाँ पर इस्तेमाल देख सकते हो आप, फॉर 3 hours।
We have been studying tenses in Kamlesh sir's class. Chhagan has been helping his mother in the kitchen since morning. अब समझते हैं आप, she has been playing, subject has been and verb 1 plus ing, okay? और ये हमारा object. I have been watching, okay? Subject plus has have plus been plus verb 1 plus ing, that is watching. अब ये सेंटेंस को समझते हैं. You subject have been singing a melodious song for 3 hours. ये ड्यूरेशन है तो 3 घंटे के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हो कि छगन है जो अपनी मम्मी को मदद कर रहे हैं. कब से? सुबह से. तो जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू होती है और अभी तक चल रही है, अभी भी, जैसे एक बच्चा एग्जाम लिखने के लिए बैठता है 10 बजे, 10 o'clock वो बैठता है, और अभी जैसे आप समझ लो दोपहर के 12 बजे, तो उसने वो लिखने की एक्शन कब शुरू की थी? 10 o'clock. तो उसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अ बॉय हैज़ बीन राइटिंग हिज एग्जाम सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह 10 बजे से वो एग्जाम उसने लिखा और अभी भी वो लिख रहा है. तो वो चीज़ आपको समझनी है. आई होप आपको ये 4 टेंसेस समझ में आए हैं. कौन से? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. 4 टेंसेस करके सीखते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी एंड दिस वीडियो, लेट मी शेयर विथ यू समथिंग. Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is the gift, and that is why we call it present. So thank you so much for watching. अगर आज आपने कुछ सीखा है तो लाइक करके हौसला बढ़ाइए. दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो. बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना. पार्ट 2 कमिंग अप. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.